The Battle of Alliances has begun officially. There were two big meetings today, one in Bangalore and the other in the national capital. The one in Bangalore was where the opposition came together and have now decided to call themselves INDIA. There are 26 of them. On the other hand, in Delhi, NDA allies got together. There are 38 of them, and they said that the opposition is essentially a conglomerate of corruption. The Prime Minister is the one who fired the first salvo. Kattar Bhrashtachar Sammelan. The Prime Minister called the opposition's gathering in Bangalore a conclave of the corrupt. Now, even before the Special 26 became India Today, the Prime Minister took a jibe at the opposition meeting in Bangalore, saying that their mantra is of by and for the family. At the inauguration of the new integrated terminal building at Veer Savarkar International Airport in Port Blair, Prime Minister Modi called the opposition corrupt and staunch dynasts. And he used some pretty strong words like Jamaat and Kunba and asked people to stay alert. He didn't stop there. He said facing corruption charges is the qualification to be part of this opposition huddle. Listen in. साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। There was a counterpunch to that from the 26 opposition parties who had gathered in Bangalore today. First of all, the UPA has been rebranded as INDIA. Apparently, this was Rahul Gandhi's idea. And their slogan is United We Stand. This has set the stage for a battle between the NDA and INDIA in 2024. Now, the opposition's India stands for Indian National Developmental Inclusive Alliance. Listen in to the counterpunch that came in from India. Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier, we worked with UPA. Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। And we realize the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance,
which also happens to stand for India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। Now that was Bangalore. In Delhi, we saw the NDA flex as well. In fact, as we speak, the Prime Minister is chairing the NDA meeting in the national capital with 38 constituents. Now, it has grown from 24 to 38, so there are clearly some new entrants here. 4 leaders from Bihar, including Chirag Paswan of the Lok Janshakti Party, have joined in. So has Jitin Ram Manjhi of the Hindustani Awam Morcha. They've been invited, and their parties will be included in the NDA fold. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's ex-ally Om Prakash Rajbahar of the Soheldev Bharatiya Samaj Party will be rejoining the NDA today. Now, while both Team NDA and the opposition alliance INDIA are pulling out all stops ahead of the 2024 elections, the question is, who will the real India vote for? Let me go straight across to Congress MP Imran Pratapgarhi, who is joining me on the broadcast. Imran, thank you very much for your time. 2 मीटिंग्स हो रही हैं, एक बेंगलोर में हुई है, एक नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली में हो रही है, और ये मीटिंग्स डिसाइड करेंगे कि 2024 का इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों मीटिंग्स को जो एक ही दिन हो रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी मीटिंग की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, जब प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये नारा लगाते हैं कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है, तो 38 दलों का कुनबा जोड़ने की जरूरत क्या आन पड़ी। कहां तो प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, और कहां स्थिति यह है कि चिराग पासवान जी, मांझी जी, ओम प्रकाश राजभर जी, न जाने कितने ऐसे लोगों को न्योता भेज करके एनडीए का घटक संगठन बनाना पड़ रहा है, जिनको कल तक अलग कर दिया गया था, जो वैचारिक रूप से कहीं से भी भाजपा के करीब तक नहीं ठहरते। ओपी राजभर के पुराने बयान भाजपा ने सुने ही होंगे। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष की बैठक, पहली बैठक के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद 38 दलों का गठबंधन बनाना पड़ा। तो उस नारे का क्या हुआ जो खुद प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में लगाया था कि एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो आज कह रहे हैं ये जो मीटिंग हुई है बेंगलोर में, ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। वो कह रहे हैं उनके लिए इट्स फैमिली फर्स्ट एंड नेशन नेवर। आपको देश की नहीं पड़ी है, आपको अपने आप को और अपने परिवारों को बचाने की पड़ी है, इसलिए ये सब जितने ऑपोजिशन पार्टीज हैं साथ आए हैं। देखिए, अब प्रधानमंत्री जी कितना उनका आत्मविश्वास जो है वो डगमगा गया है, वो इनके इस भाषण से पता चलता है, उनके इस बयान से पता चलता है। कल तक प्रधानमंत्री जी अपने आगे किसी विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं थे, और आज कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी फिर भाजपा के गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे हैं, जहां हेमंत बिश्व शर्मा बैठे हुए हैं, जहां नारायण राणे बैठे हुए हैं, जहां बीएस येदियुरप्पा बैठे हुए हैं, जहां पे शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए हैं, और अभी हालिया दिनों में अजीत पवार शामिल हुए हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, हसन मुशर्रफ मंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री जी भाजपा के गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे हैं? विपक्ष को आप भ्रष्टाचारी बताएंगे, लेकिन जो भाजपा की वॉशिंग मशीन है, जिसमें धुल करके सारे भ्रष्टाचारी जो है
वो बिल्कुल साफ सुथरे मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और वही भाजपा जो ईडी के जरिए उन पर आरोप लगा रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वही भाजपा के तमाम प्रवक्ता और कार्यकर्ता उनके सामने हाथ जोड़ करके उन्हें माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये पूरा देश देख रहा है। 15 लाख के जुमले से शुरू हुआ झूठ, अच्छे दिन के झूठे दावे से शुरू हुआ जुमला, आज जो है वो विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताने पर आकर के ठहर गया है। प्रधानमंत्री जी भाजपा के गिरेबान में झांकिए, अभी तक 20,000 करोड़ अडानी की कंपनियों में जो लगे हैं वो किसके हैं, ये सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं। और इस बार मानसून सेशन में फिर से आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, आप जवाब देने के लिए तैयार रहिए। चलिए आप भी एक जवाब दे दीजिए। फिर सवाल ये है, आपने अपने गठबंधन को नया नाम तो दे दिया INDIA, लेकिन एक जो नाम है अभी तक हमें यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं दे पाई है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपका प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन होगा। क्लीशे सवाल है, मोदी वर्सेस हु, लेकिन जेन्युइन और लेजिटिमेट सवाल है, और इसका जवाब अभी तक आप लोग नहीं दे पाए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अब लड़ाई इंडिया वर्सेज NDA है। लड़ाई भारत के लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। वो संविधान, वो लोकतंत्र जिसे पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी कभी एजेंसियों के जरिए, कभी प्रधानमंत्री जी का पूरा जो प्रशासनिक कुनबा है उसके जरिए संविधान को और लोकतंत्र को कुचलने का कोई भी प्रयास, विपक्ष की आवाज को दबाने का कोई भी प्रयास भाजपा ने छोड़ा नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ पहले उन्हें 56 घंटे ईडी के कार्यालय में बुला करके जब प्रताड़ित करना चाहा और वो नहीं रुके, उसके बाद फिर उनको सदन से निष्कासित करवा करके एक बेसलेस मुकदमे में जिसका कोई औचित्य नहीं बनता, जिसका कोई आधार नहीं बनता, तो कौन चेहरा होगा यह भी तय हो जाएगा। मुझे तो आज खुशी इस बात की है कि विपक्ष ने पहली बैठक पटना में की, उसके बाद भाजपा इतना बौखलाई कि उसे महाराष्ट्र में एक और बार, पहले शिवसेना को तोड़ना पड़ा था और फिर उसके बाद उन्होंने एनसीपी को तोड़ा। एक बार लोकतंत्र को पहले लूटा था और फिर अब दूसरी बार लोकतंत्र को लूटा। और आज विपक्ष की दूसरी बैठक उधर हो ही रही थी कि तुरुप का जो सबसे बड़ा इक्का है भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि खुद प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर के बयानबाजी शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि भाजपा कितना बौखलाई हुई है। चेहरा कोई ना कोई होगा। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो के जरिए पूरे देश में उन्होंने जो एक माहौल बनाया है, जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उसका सबसे बड़ा शोरूम जो है वो दिल्ली में खुलेगा 2024 में। और भाजपा कितना भी जोर लगा ले, मैं अक्सर ये बात कहता रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री जी को जो काम करना चाहिए था वो काम राहुल गांधी जी ने किया। मणिपुर में जाकर के लोगों को सीने से गले से लगाना था प्रधानमंत्री जी को, गृहमंत्री जी को, लेकिन लगाने के लिए कौन गया? राहुल गांधी जी। इस देश के गरीब किसानों के साथ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश के मोटर मैकेनिकों के साथ, ट्रक ड्राइवरों के साथ, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जी किसके साथ खड़े हैं? अपने उद्योगपति मित्रों के साथ। वो तो टमाटर 150 रुपए किलो हो गया, ये शायद उनको पता भी ना हो। आटा चावल दूध दही सब कुछ महंगा हो गया है, शायद उन्हें पता भी ना हो। तो असल आम जनता के मुद्दों पर खड़े हैं राहुल गांधी। चेहरा कौन होगा? जाहिर सी बात है राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने यह बात कही भी है कि राहुल गांधी जी की यात्रा ने जो असर छोड़ा है वो बहुत व्यापक है। रही बात राहुल गांधी को साजिश के तहत संसद से निकालने की, अभी सबसे बड़ा दरवाजा बाकी है। हमने वो चौखट खटखटाई है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय उच्चतम न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा और राहुल गांधी जी फिर से एक बार लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में अगुवाई करेंगे। नहीं, आप ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मोहब्बत का शोरूम है वो राहुल गांधी 2024 में खोलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपके इन्वेस्टर्स हैं शोरूम में, यानी कि आपके एलाइज, वो भाग जाएं राहुल गांधी का नाम सुन के? क्योंकि द अलायंस, योर अलायंस इटसेल्फ हैज सम वेरी बिग नेम्स एंड सम वेरी बिग एम्बिशंस। नहीं, ये दुआ मैं जानता हूं कि ये दुआ भाजपा के साथ साथ भाजपा के जो तमाम सहयोगी अलग अलग सदस्यगण हैं वो ये कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, हमारे लोग बटोरे हुए लोग नहीं हैं। हमारे लोगों का जो कुनबा जुड़ा है उसमें एक से एक वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सताए गए लोग हैं, या एजेंसियों के द्वारा प्रताड़ित किए गए लोग हैं, या वो लोग हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लेकिन भाजपा के लोग तो बटोरे हुए लोग हैं।
ओपी राजभर जी का बयान तो आप सबको याद होगा, मैं पुराने वीडियोस उनके क्या प्ले करूं जिसमें प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी किसके बारे में क्या नहीं बोला है उन्होंने। चिराग पासवान जी का जो हश्र किया था, आज भी मेरा ख्याल है बिहार भूला नहीं होगा कि रामविलास पासवान जी के घर को खाली करवाने के दौरान उनकी तस्वीरें, उनका सामान किस तरह से 12 जनपथ के सामने किस तरह से फेंका गया था, विजुअल पूरे देश ने देखा था। आज उन्हीं चिराग पासवान को चिट्ठी भेज के बुलाना पड़ रहा है, मांझी को चिट्ठी भेज के बुलाना पड़ रहा है। तो कुनबा तो भानुमति का भाजपा ने जोड़ा है, हमारे लोग जोड़े गए लोग नहीं हैं। हमारे लोग वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं। और जब लड़ाई विचारधारा की है, भारत के संविधान को बचाने की है, तो मोहब्बत की दुकान से कोई कैसे भाग सकता है। लोग नफरत की दुकान से भाग रहे हैं, भाजपा से लोग भागेंगे। अभी थोड़ा और बढ़ने दीजिए, समय और बढ़ने दीजिए, आप ये पाएंगे जब हमने पहली बैठक की थी तो संख्या कम थी, आज हमने दूसरी बैठक की है तो संख्या 26 है। अभी जब तीसरी बैठक होगी तो हो सकता है कि एनडीए के कुछ घटक दल छोड़ करके फिर से इंडिया में शामिल हो जाएं, क्योंकि लड़ाई इंडिया को बचाने की है, संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है। चलिए, इमरान प्रतापगढ़ी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन मिरर नाउ।